So I repeat, ideally you will want to have a hard copy of these questions. It's great for practice. You have a compound where only for the sake of it, they'll give you peripherals like a benzene ring with a chlorine at para position. It's parachloroacetophenone. यहाँ पर साइनोहाइड्रीन जैसे ही करना है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे. ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस करने के बाद इथेनॉल विल रिएक्ट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, और जो एसीटेट बनेगा उसके साथ में MEMGBr का एक्सेस में रिएक्शन होगा. So you have a basic blueprint of what needs to be done. Yeah. So if I'm right, this is the question at hand. You have acetophenone, parachloro. You'll want to do cyanohydrine, then ethanol hydrolysis, followed by excess of MEMGBr, and say hydrolysis. Now step 1, cyanohydrine formation will give you OH, C triple bond N, which will become on hydration OH, COOH. Now comes step 2, where this with ethanol will obviously form the corresponding ether. And as far as ether is concerned, ether is going to consume 2 moles of MEMGBr. Ether is going to consume 2 moles of MEMGBr. और ये ऐसे क्लोरीन में लिख रहा हूं यहाँ पर, ये जो OH है ना, ये जो OH है उसके ऊपर में एक मिथाइल है, और नेचुरली ये कार्बन सी डबल बॉन्ड OOET बहुत बार करा दिया हूं. ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएगा. यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएगा. ये मेरे को लग रहा है सबको समझ में आ रहा है. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. ये A और B निकालना है मेरे को. तो नेचुरली A हो जाएगा मेरा, जहां पर वो उसका एसिडिफिकेशन हो गया एसिड का. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. And B would be the final product. What is the right option? You can take a screenshot very quickly of this, you can take a screenshot very quickly of, this working, and tell me what is the right answer. 43, please go ahead. What is the right answer that you get? Option B. Option B. Option B. Option B. Option B. Option B. I think it's Nandini who is responding the first, followed by, और कौन आंसर बताया भाई इसका? कम ऑन, नाम बताओ जल्दी, आगे बढ़ते यार. 40 के क्वेश्चन कम से कम करेंगे आज. यस, कृष्णा. कृष्णा भाई 44 देखते हैं. 43 का ऑप्शन बी बॉम्बे लुक्स गुड. ऑप्शन बी बॉम्बे लुक्स गुड. यहाँ पर नेचुरली एक मिथाइल थोड़ा सा मिसप्रिंट जैसा हो गया, ये नहीं होगा. रेस्ट इज अंडरस्टूड. 44 देखते हैं. 44 I think it's pretty visible again. 44 acetyl ketal stable in basic medium. Acetyl ketal stable in basic medium. True or false? True. True. Obviously true. इतनी बार मैं बता चुका हूँ. It's true. बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है. और जो रीजन है ना, हाई लीविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड गिव्स द स्टेबिलिटी टू acetyl ketal in basic medium. This is bullshit. इसका कारण ये है कि there is no reversibility in alkaline medium. In alkaline medium it does not go back. वो acidic medium में it can go back. So this is false. This is false. So I think most of you would have got it right. A is true, R is false. 44 A Agra looks good. How many of you got it right? 44 A Agra. How many of you got it right? 44 A Agra. I'm sure some of you would have got it right. 45 also looks to be an interest. Nandini, the rest of you would want to respond as well. 45 also looks to be a good question. Anyone who has attempted question 45 and wants to give me the solution, the right answer? Option A. Option A is the right option. When you find an acid and an alcohol form,
when you find an acid and alcohol form naturally with the same number of carbon atoms, the first and foremost thought would be, it's coming from a Cannizzaro. So this must have come from benzaldehyde. This must have come from benzaldehyde. So all these steps which you need to take is how you reach from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon to benzaldehyde. Now, naturally, Cr2O3 is a process, which is called aromatization. High temperature, high pressure, Cr2O3. At times, molybdenum oxide, aluminum oxide is also taken as a catalyst. And this is called aromatization. This is called aromatization. Please respond to me. This aromatization would mean a 6 carbon chain will become benzene and a 7 carbon chain will become toluene. अब टॉलुइन में CrO2 Cl2H2O हम लोग कर करके इटार्ट बढ़कर रिएक्शन करेंगे. इटार्ट रिएक्शन से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड. NaOH naturally is causing Cannizzaro, and on hydration CO minus will become COH. 45A is the perfect answer. How many of you got it right? I got to hear from Nandini and maybe Krishna. Who else got it right? So Sejal. Sejal and? Yes, I heard one more name. Kanhaiya. Kanhaiya Babu. खूब बढ़िया. Very good. 46. 46 भी एक अच्छा क्वेश्चन है. 46 में सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? 46 में सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? यही तो गड़बड़ है. जवाब देना चाहिए दोस्त. ये उठ के यहाँ पर आता है, ये OH बन जाता है. जैसे हम लोग कार्बोनिल और अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो ये OH बन जाता है और ये OR बन जाता है. ये OH बन जाता है और ये OR बन जाता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको OH बनाएंगे. देखो, इसको OH बनाएंगे. हाइड्रोजन को भी गोली मारो, हाइड्रोजन का जरूरत नहीं है, साइड में कर देता है हाइड्रोजन. ठीक है. उसके बाद इसमें पूरा OR लगाएंगे. तो OR कैसे लगेगा? ये O हो गया. उसके बाद मान लो ये वाला कार्बन है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये COOH हो गया. और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को COOH और OH जब पास पास में मिलेगा, I'll want to remove water and cause intramolecular esterification, and no, this would be the final product. जहां पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक कार्बन है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर ऐसा एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा. 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगा. ये वही वाला कार्बन है, ये वही वाला कार्बन है जो कार्बन ये है. देखो ध्यान से देखो, OH-OR बना रहे. दिस बेसिकली अराउंड ऑन दिस कार्बन आई एम फॉर्मिंग अ hemiacetal OH-OR. Yes or no? Please take your time, but make sure that you understand it. At the end of the day, you should understand it. What is the right option in that case? And how many of you got it right? Option B. Nandini says B, Bombay. I would have wanted more people to respond to it, 46 B, Bombay should look good. I repeat, I would have wanted more people to respond to it, and I'm going to move at a faster pace right now. So I'll insist that you take a screenshot. Ideally, you will want to respond more positively in the class. But I'm losing patience on encouraging you to respond and tell me your names. That should ideally come from your end only. तो अब मैं किसी से पूछूंगा नहीं. जिसका आंसर राइट होगा वो मेरे को अपना नाम खुद बताएगा. मेरे को फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा सेंस ऑफ अर्जेंसी है. टेक अ स्क्रीनशॉट. वी मूव ऑन. क्वेश्चन 47 एट द काउंट ऑफ 3. Compound X undergoes following sequence of reactions to give the lactone Y. You have to identify X. Yet again, when you see lactone, lactone is a cyclic ester. A cyclic ester would very well come from a cyclic acid. So this should be the first thought process. You'll want to think of the sequences which is suppose going to give you this compound. Now, naturally, जो लैक्टोन तुमको दिया हुआ है वो लैक्टोन में ऐसे वाटर निकालोगे तब इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन का वो प्रोडक्ट होगा.
Before again I go to the solution, somebody needs to tell me the answer. What is the right answer to question 47? 47? 47, come Option A. on. Yet again, it's Nandini, I reckon, who is giving me the right answer. No, A, I know is the right answer. B कौन बोल रहा है दोस्त? Sir, Who Krishna. said B? कृष्णा, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. The good thing is सही हो चाहे गलत हो तो रिस्पॉन्ड कर रहा है. Nandini, I think, gave me the right answer, which is A, Agra. I can't help but feel sorry about others who are not responding. You would have certainly solved it, got one or the other answer. This is within reach. This is within reach. This is not something which you cannot solve. And I'm going to give you detailed solution to it. It's not I'm going to rush through things. I'm not going to rush through things. So I think I'm being understood. When you see at a lactone, you first of all want to draw the corresponding acid. And the acid which I have drawn here is a cyanohydrine का hydrolysis product. तो वो साइनोहाइड्रीन कौन सा होगा? जो वहां से आया होगा वो साइनोहाइड्रीन ऐसा होगा. जिस साइनोहाइड्रीन को हाइड्रोलाइज करके वो एसिड बना रहे हैं, वो साइनोहाइड्रीन कैसा होगा? वो साइनोहाइड्रीन ऐसा होगा. I'm doing it very very gradually. वो साइनोहाइड्रीन होगा OH और यहाँ पर CN, इसी से ये एसिड आया होगा. और नेचुरली वो OH और CN आया होगा. साइनोहाइड्रीन अगर ये CHO होगा, तो जो कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद H का बना, यहाँ पर साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन हो रहा है. तो आई वांट टू कीप दिस CHO. ये CHO है जिससे तो साइनोहाइड्रीन बन रहा है. यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर CH2OH है. तो कौन सा चारों में ऐसा है जो फॉर्मल्डिहाइड के साथ में एल्डोल करके, क्रॉस एल्डोल करके, जहां पर इसके पास नेचुरली अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिस हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो दिस कैन एक्ट ओनली एज द एक्सेप्टर. और हम लोग क्या करते हैं? व्हेन इट कैन एक्ट ओनली एज द एक्सेप्टर, HCHO becomes CH2OH. तो नाउ यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने का. ये CHO है. कौन सा CHO? ये वाला CHO. इसके बाद वाला जो कार्बन है, ये कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन है. ये कार्बन में दो मिथाइल लगा हुआ है. नेचुरली अगर ये हाइड्रोजन छोड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन छोड़ेगा और ये नेगेटिव जाकर के HCHO के साथ में एक क्रॉस डायल्डोल करेगा, वेयर इज एक्टिंग एज द एक्सेप्टर. नाउ नेचुरली जब ये ऐसा करेगा, ये बन जाएगा CH2OH. ये कार्बन आकर के इससे चिपक जाएगा ऐसे, और इवेंचुअली क्या करते हैं? ये HCHO के साथ में क्रॉस डायल्डोल में, HCHO के साथ में क्रॉस डायल्डोल में क्या करते हैं? वो अल्फा हाइड्रोजन हटा करके वहां पे CH2OH लगा देते हैं. तो ये CH2OH आकर के यहाँ पर लग गया. ये CH2OH में ये वाला जो कार्बन है, वो ये वाला कार्बन है जो आकर के लग गया उसमें. देखो, तो इतना इतना बेसिक सिंथेटिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. यू नीड टू बी गुड एनफ टू रियलाइज कि अगर एक लैक्टोन बन रहा है, तो लैक्टोन नेचुरली एसिड और अल्कोहल से बनेगा. ये साइक्लिक ईस्टर समझिए, एसिड और अल्कोहल समझ लो. एसिड और अल्कोहल में ये एसिड जो है वो एक साइनोहाइड्रीन का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है. तो साइनोहाइड्रीन जो COH बना होगा वो बना रहा हूँ, और ये वाला कार्बन पर OHCN लग रहा है, तो ये वाला कार्बन पर मैं CHO बना रहा हूँ. ना व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये जो मैं बनाया हूँ, ये जो मैं बनाया हूँ, बच्चे लोग खाना बोलो, ये जो मैं बनाया हूँ ये क्या है? ये है तुम्हारा द प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड X विथ फॉर्मल्डिहाइड, विच इज एन एक्ट ऑफ क्रॉस एल्डोल. कृष्ण बाबू समझ में आ रहा है? मेरे को ऐसे कंपाउंड चाहिए जिसका अल्फा कार्बन पर मैं HCHO को चिपका करके CH2OH बना करके ये फाइनल प्रोडक्ट लेकर के आऊं. जो ऑप्शन ए है. ए का नाम याद रखना, इसको हम लोग आइसो ब्यूटल डिहाइड भी बोलते हैं. आइसो है ना. ठीक है, अरे हाँ ना बोलो. So take a snapshot and we'll want to move to question 48. We'll want to be faster than this.
48 में नेचुरली आई फॉरगॉट टू टेल यू, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ओ होगा। ये एक छोटा सा टाइपिंग एरर है जो किताब के अंदर है, मैं तो फोटो खींच करके शेयर कर दिया था। 48 यू हैव द क्वेश्चन एट योर हैंड। 48 एग्जैक्टली जो पहला क्वेश्चन करवाया था मैं वही क्वेश्चन है। बच्चे लोग हाँ ना बोलो, बच्चे लोग हाँ ना बोलो। 48 is the same as the first question which we solved, which was 43. देखो पैराक्लोरोएसिटोफेनॉन, साइनोहाइड्रीन, इथेनॉल, एक्सेस MEMGBR। अरे हाँ ना बोलो यार। Please respond. I guess you all have a hard copy of the problem sheet. That's a prerequisite. I think you can read the question pretty clearly. Do you find 48 and 43 identical? Yes or no? This is Yes, like sir. enough Yes. now. तो आंसर भी वही होगा जो 43 का आंसर था, which is option. Come on. B B. बॉम्बे। B. कम से कम नंदिनी, कृष्णा, ये जो दो लोग जवाब दे रहे हो वो लोग जवाब देते रहो यार। बाकी लोग को तो पता नहीं क्या हो गया है, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन क्लास में मैं बार बार बोलता हूँ, व्हाट कीप्स मी रनिंग इज Sir, द पीपल Sejal. रेस्पॉन्डिंग। अच्छा सेजल, आई एम सो सॉरी सेजल। ऐसे भी मतलब अगर मान ले मैं किसी का नाम अगर गलत बोल दिया हो ना, यू कैन ऑब्वियसली एक्सप्रेस योर डिसएग्रीमेंट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये OH है, ये CN है, जो COOH बन गया है। So you're doing a good job. ये COOET हो गया और ये COOET 2 मोल MEMGBR लेगा, जिससे क्या होगा बोलो, बाकी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये जो OH है इसमें से मिथाइल लगा दिया है, ये वाला मिथाइल वही वाला मिथाइल है जो मिथाइल मैं यहाँ पे सस्पेंड कर रहा हूँ। और ये COOET जो है ना, ये वाला जो कार्बन है ये OH बन जाएगा, जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। ऐसा आंसर होगा, सिंपल। B Bombay, how many of you got it right? B Bombay, how many of you got it right? Along with Sejal, Nandini, Krishna, Kanaiya. More people would have got it right. 49 is again a very good question. 49 is again a very good question. I keep talking about Clemenson, Wolff-Kissner. Clemenson में हम लोग एसिड लेते हैं, Wolff-Kissner में हम लोग बेस लेते हैं। अब बताओ क्या बात सही है, क्या बात गलत है? दोनों सही है कि दोनों गलत है? स्टेटमेंट 1, Clemenson रिडक्शन होने से COOH बन जाएगा along with the reduction of double bond O, और दूसरा वाला जो है उसमें Wolff-Kissner करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। Please tell me, what do you consider as the right answer to this question? Option A. Option A. Both of you think it's option A, and your names are Nandini. Vanshika. Vansika, and who is the first one? Nandini. Nandini and Vansika. Yes, please. Your name is third one. Yes, Akash. आकाश, इतने गब्बर सिंह हो गया तुम। B होना चाहिए। हाँ, B होना चाहिए। Both false. आकाश बाबू कौन है? सर मेरा भी B आता है। अभी ज्वाइन कर रहा है बच्चा बाप, अभी 6 बजे है भाई साहब, अनुपम श्रीवास्तव का। देखो एक बात समझो, क्लेमेंसन रिडक्शन में जो तुम अमेलगमेटेड जिंक HCl लेते हो ना, अमेलगमेटेड जिंक HCl में काफी बार बोला हूं, HCl, H2SO4, NaOH, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये सब का सब एक्वस मीडियम होता है भैया। इसको रिड्यूस करने के बाद में इसको एसिड बना देगा, ये सही बात है। एसिड है, एसिडिक मीडियम है, एक्वस मीडियम है। ये एसिड अमाइड को, एसिड हैलाइड को, ईस्टर को, एसिड डेरिवेटिव को एसिड बना देगा। इसको रिड्यूस करने के साथ साथ इसको भी एसिड बना देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। दूसरा बात, इसको फॉल्स कैसे बोल रहे हो बताओ? दूसरा वाले को फॉल्स कैसे बोल रहे हो? जो लोग मान लो बी बोल रहे थे, 1 फॉल्स नहीं है, 2 है सपोज, ठीक है।
ट्रू को फॉल्स कैसे बोल रहे थे? सर हैलोजन बेस सेंसिटिव ग्रुप है। हैलोजन बेस सेंसिटिव ग्रुप है। ये बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही सेंसिटिव है, ये बहुत सेंसिटिव है। मैं बोलता हूं ना, ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है। एक बेस या एक न्यूक्लियोफाइल जो या तो एलिमिनेशन करेगा या फिर सब्स्टिट्यूशन करेगा, दोनों को चाहिए होता है एक लीविंग ग्रुप। ये सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है। हालाइट्स आर द बेस्ट लीविंग ग्रुप बिकॉज दे आर द वीकेस्ट बेसिस बिकॉज दे कम फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। की कहानी में कितना बार बताया हूं। तो अगर इसको रिड्यूस करेगा तो उसके बाद या तो यहाँ पर OH आके लग जाएगा एज एक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड लग जाएगा, एक डबल बॉन्ड लग जाएगा द एक्ट ऑफ एलिमिनेशन। एक बेस या न्यूक्लियोफाइल दोनों उसको लीविंग ग्रुप के जैसे ट्रीट करेगा, और बेसिक कंडीशन में, न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन में ऑब्वियसली जैसे मैं बोलता हूँ हैलाइड को लात मार के भगा देगा। तो ये फॉल्स है। ये एक बेस सेंसिटिव ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल सेंसिटिव ग्रुप है। पर पहला बार ठीक है मेरे दोस्त, किसी का भी सी आया था क्या? 49 कोई भी सी किया था क्या? 49 कोई भी सी किया था क्या? "50 which will undergo deprotonation most readily in basic medium." ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए। तो सबसे पहले डी कौन बोला? सबसे पहले डी कौन बोला? वंशिका। वंशिका एक चीज बहुत अच्छा कर रही है, तू एकदम बिल्कुल आंसर भी बता रही है और उसके बाद तेरे को इससे डर भी नहीं लगता है कि गलत है कि सही है। ऑब्वियसली तेरा आंसर गलत है, बट ये गलती करने से भी इंसान बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि इससे मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि तू सोच क्या रही है और तेरे को क्या समझने का जरूरत है। हम लोग मैक्सिमम टाइम सोल्यूशन देख करके ना खुश हो जाते हैं कि हम सीख गए। पर जानते हो एक्चुअली आदमी सीखता है गलती करके। यू मेक अ मिस्टेक एंड देन यू लर्न इन दी आइडियल सिनेरियो। अब देखो, सब में ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है। ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से हाइड्रोजन जाता है, तो ये जो नेगेटिव होता है ये लेफ्ट और राइट में रेजोनेट करता है। हाँ ना बोलते रहो। आई रिपीट, तीनों में एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है। तीनों में एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है और एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से ही हाइड्रोजन निकलेगा। ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन निकलने के बाद जो नेगेटिव होगा वो रेजोनेट करके क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा। अब हाँ ना बोलते रहो बच्चे लोग। अरे कोई तो बोलो, हाँ सर। बंदर लोग। चलो, कृष्णा बाबू तो बोले हैं ये जो नेगेटिव है ना, ये रेजोनेट तब करेगा अगर इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने वाला और कोई नहीं रहेगा। यहां पर इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है। देख यहां पर ना, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये इस नेगेटिव के साथ में कंपटीशन करेगा कि तुम भी इसको पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। देखो ये तो पोलर है, परमानेंट पोलर है, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। ये नेगेटिव जाकर के इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब ये पॉजिटिव जितना पॉजिटिव रहेगा उतना इसका रेजोनेंस में रोल ज्यादा रहेगा। अब ओएमई का लोन पेयर क्या है ना, इस लोन पेयर के साथ में कंपीट कर रहा है। ये लोन पेयर भी इसको रेजोनेट कर सकता है, तो जब ये भी इसको रेजोनेट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो नेचुरली इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम जाएगा। यहां पर एक तरफ से कमेगा, यहां पर एक तरफ से कमेगा और यहां पर दोनों तरफ से कमेगा। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन होता ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का, देन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस वुड बी, अगर इसको मैं ए प्राइम बोलूं, बी प्राइम बोलूं और सी प्राइम बोलूं, तो द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस नेचुरली विल बी ए प्राइम मोर देन सी प्राइम मोर देन बी प्राइम। और अगर ये स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस का, तो ए मोर देन सी मोर देन बी इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब सबसे रेडली कौन निकलेगा? अब ये ओएमई का मतलब ये कि ओएमई एक डेटरेंट है। ओएमई एक डेटरेंट है इसका हाइड्रोजन निकलने में। यहां तक कि जब मैं बोल रहा था कि इन तीनों के अंदर में सिर्फ ये हाइलोफॉर्म टेस्ट देगा, दिस विल गिव यू पॉजिटिव हाइलोफॉर्म।
ये खाली पॉजिटिव हैलो फॉर्म दे रहा था, उसके बाद एक भी एसिटाइल ये एल्कोक्सी ग्रुप आने से एक भी ऐसा OMe ग्रुप आने से मैं बोल रहा था कि वो पॉजिटिव हैलो फॉर्म नहीं देगा, बिकॉज ये हाइड्रोजन का लॉस उतना फिर फिजिबल नहीं होता। ये नेचुरली अदर थिंग्स वुड come into play. So, if there is order of acidity and OMe is a deterrent to loss of hydrogen and the stability of the conjugate base, I think only A is the right answer. How many of you got A right? 50 A right? कौन लोग A बोला? Kavaiya. Nandini. 51 बोलो बच्चे लोग, 51. So D. सर ऑप्शन डी। Option D. यहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा, NH2OH क्या करेगा? NH2OH क्या करेगा? NH2OH तो इसको CH, के साथ तो H2O लूज करेगा। CH डबल बॉन्ड NHOH लग जाएगा, और P2O5 क्या है? हाइड्रेटिंग एजेंट। Dehydrating. डिहाइड्रेटिंग है। तो यहाँ से अगर तुम 1 मोल पानी निकालो ना, यहाँ से अगर तुम 1 मोल पानी निकालोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N निकलेगा, बचेगा। देखो ये CH डबल बॉन्ड NOH होगा, सॉरी ये एल्डोजाइम होगा। यहाँ से अगर पानी निकालोगे ना, इफ यू रिमूव वाटर फ्रॉम हियर यू विल गेट Cyanide. C triple bond N, which you tell me is option D Delhi. How many of you got it right? D Delhi. How many of you got it right? D Delhi. सर प्रवेश, Nandini. कृष्णा, So Sejal. प्रवेश, नंदनी, कृष्णा, सेजल। पता नहीं मैं प्रवेश को बार बार भूल जाता हूँ। मैं लास्ट क्लास में भी प्रवेश को बोल रहा था ना, कहाँ है तू? फूल बगान हावड़ा बैच कहाँ है? कहाँ छुपा रहता, दिखता नहीं है। हावड़ा बैच में ही होगा। हाँ सर, यू डूइंग गुड जॉब माय फ्रेंड। 52 52 4. 52 में जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो ऐसा है। तो 52 में ये ओरिजिनल कंपाउंड है। इसका साइनोहाइड्रिन कैसा बनेगा बोलो? इसका साइनोहाइड्रिन ऐसा बनेगा। आई थिंक दिस इज pretty विजिबल। आई रिपीट, आई थिंक इट्स pretty विजिबल। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। Yes, sir. आई थिंक इट्स pretty विजिबल। अब यहाँ पे कितना कायरल है, कंपाउंड कार्बन है जो प्रोडक्ट बना है, उसमें कितना कायरल कार्बन है? जो प्रोडक्ट है उसमें कितना कायरल कार्बन है? 2. 2। 2. 2 कायरल कार्बन है, पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है ना। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है ना। अभी तक कोई मेरे को सही आंसर नहीं बताया। सरप्राइज, ये उतना चैलेंजिंग क्वेश्चन था नहीं। अगर 2 कायरल कार्बन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आई वांट टू रिसोर्ट टू दिस फॉर्मूले। I mean, 3. you know this from the days of tartaric acid. 3, naturally 3, the answer is 3. Naturally the answer is 3. 2 कायरल कार्बन प्लेन ऑफ सिमेट्री, आंसर तो 3 होगा बच्चे लोग। How many of you got 3 right? Please tell me. And I repeat, we're going to be moving faster than this. I think I'm being understood. I think I'm being understood. मैं एक बार 52 वापस फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा। ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो फॉर्मूला लगेगा 2 to the power n-1 plus 2 to the power n/2 - 1। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 53 is a simpler one. 53 is a simpler one, सिर्फ रिलेट करना था। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? 53 ऑप्शन है। A. ऑप्शन ए। So I don't think we need any help in 53. The best thing would be to tell me your names. Almost everyone would have got it right. Please quickly tell me your names. Some of you got 53 right.
still more people are not coming up with their names, ये सभी से हो गया होगा, मैं क्या बात करूंगा 53 का। 54 54 भी एक सिंपल प्रॉब्लम है। 54 भी एक सिंपल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, जहां पर OH माइनस मिलते तुम अल्फा हाइड्रोजन निकाल दोगे। हाँ ऑप्शन सी। सी। हाँ, मेरे को भी सी लग रहा है। उसके बाद क्या करना है, ये जो ब्रोमीन है, मैं बोलो ना क्या करते हैं हम लोग, ब्रोमीन को क्या करते हैं, लात मार के निकाल देते, जैसे मैं बोलता हूँ। इट कैन वेरी वेल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड थ्रो आउट Br माइनस, और यहाँ पर 2 कार्बन बढ़ जाएगा, तो इट विल बी R C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH2। 54C Calcutta is again a simple question to attempt. 55 yes my friend, 55 will want to move faster than this. What ऑप्शन is सी। this? ऑप्शन सी। सी। टॉलरेंस रिएजेंट है। कौन कौन सी बोल रहे हैं बच्चे लोग? नंदिनी। कृष्णा। NaBH4 सुसेज। doesn't फैक्ट डबल। react with acid, तो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, खाली इसको OH बना देगा। तो ये वाला फाइनली बन जाएगा, ये मान लो H है, OH है, ये H है, ये C है। क्या बोल रहे हो बच्चे लोग, सी बोल रहे हो क्या? यस सर। यस सर, ऑप्शन ये भी सी। सिंपल ही क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। एंड आई एम हैप्पी सेजल भी WBJ बोल रहा हूँ, इसका नाम ले लिया मैं। आई एम हैप्पी सेजल भी जेई मेन से क्वेश्चन कर रही है, ये नीट लेवल का ही क्वेश्चन है यार। अब तो नीट लेवल का ही क्वेश्चन ऐसा होने लग गया है। 56 डी। 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 ऑप्शन डी। नेचुरली डी डेली राइट है, सर ये हम लोग ऑप्शन बहुत डी। बार कर चुके हैं। यस यस यस। एक तो यहाँ पर अगर 2 मोल डालेंगे तब जाके बनेगा CH3 CPH PHOH। यहाँ पर ये बन सकता है, पर 2 मोल लगेगा, पहला मोल कीटोन बनाएगा, दूसरा मोल अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पर ऑब्वियसली 2 मोल लगेगा, पर यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हारा CH3 का नामो निशान नहीं रहेगा। तो 2 मोल लगने के बाद में भी इट विल फॉर्म अ कंपाउंड लाइक दिस, मेरे को ये चाहिए। यहाँ पर इट विल अगेन गिव यू CH3 COH PH, पर यहाँ पर भी वही कहानी है। यहाँ पर भी समझो पहले ये ग्रुप जाएगा, उसके बाद 2 PH लगेगा, तो यहाँ पर भी 2 मोल लगेगा। बट एक्चुअली ये दोनों का दोनों 1 मोल रिएक्ट करने के बाद में ये बनाएगा, ये दोनों का दोनों 1 मोल रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा, और इसमें 1 मोल और डालने से ये PHMGBr ये बनेगा। तो D is obviously right answer, and I'll claim it a simple question. I think it's a simple question for everyone. Please respond. How many of you got it right? I'll say it's a simple question. How many of you got it right? सर प्रवेश। सर कृष्णा। वंशिका। सर वंश। नंदिनी। चलो वंश बाबू भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। 57 में खाली एल्डोल करना आना चाहिए, 57 में एल्डोल करना आना चाहिए। जल्दी राइट आंसर बताओ। ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी। बी बॉम्बे, सी बी बॉम्बे, बी बॉम्बे इज राइट, बी बॉम्बे इज राइट। ठीक है, हीटिंग नहीं दिया हुआ है, मैं खाली उसका एल्डोल ही बना के छोड़ दूंगा। ठीक है बच्चे लोग, ऐसे भी ए में उसका जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में भी नहीं है। कितना बार मेरे को बस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट चाहिए होता है, कितना बार मेरे को सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट चाहिए होता है। तो मेरे को लग रहा है सबको समझ में आ रहा है। ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, इट इज एक्टिंग एज द डोनर। तो ये जो नेगेटिव है ये जाकर के दूसरा मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, नेगेटिव जाकर दूसरा मॉलिक्यूल पे कैसे अटैक कर रहा है, ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ। ये CHO है, और इसके बाद वाला जो कार्बन है वो ये इस दूसरा मॉलिक्यूल जो वाला कार्बन है वो कार्बन ऐसा है। ठीक है, ये 1 2 3 4 आइसो ब्यूटानॉल को लेकर के काफी क्वेश्चन आता है। ये जाकर के अगर इसके ऊपर में अटैक करेगा तो देख लो, समझ लो कैसा होगा। ये अगर जाकर इसके ऊपर में अटैक करेगा तो ये OH बन जाएगा जो बॉन्डिंग है, और ये वाला मिथाइल वाला जो कार्बन है, जो मिथाइल वाला उससे जाकर निकल जाएगा, ई बॉन्ड। हाउ मेनी बिकॉज 57 राइट? नंदिनी। सर वंश। सेजल। 58 कृष्णा। 58 कृष्णा, सेजल, वंश, संदनी, गुड जॉब। 58 कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये देखते ही हो जाता है, ये देखते ही हो जाता है।
ऑप्शन सी। नहीं, सी क्यों नहीं होगा? सी कौन बोल रहा है? नंदिनी बोल रही है, सेजल बोल रही है, कौन बी बोल रहा है? होगा। सर ऑप्शन बी होगा। सर बी नहीं होगा। बोलता है कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो, ये जनरली डिफिकल्ट होता है, पर ये NO2 होने की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। ऑर्थो और पैरा पे माइनस आर इफेक्ट मिलने से माइबल हैमर कॉम्प्लेक्स बनना सुविधा हो जाता है। ये सिंपल टॉलरेंस है, टॉलरेंस तो करेगा ही, कोई भी एल्डिहाइड को एसिड बना देगा। पर ये मैं बताया था ना कि फेलिंग सोल्यूशन बेंजल्डिहाइड के साथ में एरोमेटिक एल्डिहाइड में रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, बताया था ना। फेलिंग सोल्यूशन नहीं रिएक्ट करता है, क्यूप्रिक वाला जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में फेलिंग सोल्यूशन इज नेगेटिव, ये बताया था ना मैं। अरे हाँ ना बोलो। बच्चे लोग, you have a problem, you can ask me, otherwise I repeat, will want to move faster than this. Everybody knows, everybody who was in my class knows that aromatic aldehyde does not give swelling. सही बोलते नहीं हो? यस सर। 59 major product. 59 is also a good problem, very solvable. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 10% ए। KOH, 10% is another way of writing ये डाइल्यूट है। ए है सबसे क्या? पहले क्या सर करें बोलो, ऑप्शन सबसे ए। पहले क्या करें? सर ऑप्शन बी। अब मेरे को ऑप्शन याद बी। नहीं है। बी मेरे को लग रहा है सही होगा, बी लग रहा है मेरे को सही होगा, बी मेरे को लग रहा है सही होगा। कैसे बोलो तो? सबसे पहले क्या करेंगे? प्लीज गाइड मी थ्रू दी स्टेप्स। सबसे पहले क्या करेंगे? यस प्लीज। सर पहले अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ये बहुत छोटा रिंग हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग होगा, 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। ये COH का एक माइनस आई इफेक्ट है, वो एसिडिटी बढ़ाता है, तो यही वाला लेंगे हम लोग हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन नहीं लेंगे। ये ऐसे जाकर के केबल में अटैक कराएंगे, ये जब बन जाएगा OH, तो हम लोग 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, जहां पे 5 मेंबर रिंग में अगर ये OH है, ये वो वाला कार्बन है जो कार्बन एक्सेप्ट किया है और OH बना है, तो इसके ऊपर में एक मिथाइल बनाते हैं, याद करो, ऐसे ही मैं हमेशा सिखाता था। और ये वाला कार्बन अगर इसमें आके लगा है, तो इसमें एक कार्बन और COOH बनाओ। सबसे पहले चेक कर लो कि तुम जो बनाया वो है बीटा हाइड्रोक्सी होना चाहिए, कुछ गड़बड़ करते हो। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन मिले, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है। तो चलो हाँ ना बोलो। सर यस सर। तो इसमें डी आ रहा है। हाँ बोल बेटा। जाओ। हाँ सर बोलो, क्या बोल रहे हो? सर डी आ रहा है। क्या बोल रहे हो? नॉट गेटिंग यू। सर डी आ रहा है डी। डी कहाँ से आ रहा है? सर वो लेफ्ट मोस्ट वाला कार्बन बेस वाले एल्डिहाइड पे अटैक करेगा और उसके बाद में वो O माइनस COH पे अटैक करके एस्टर फॉर्म करते। कहाँ एस्टर बन जाएगा? मेरे को तो कहीं एस्टर नहीं दिख रहा है। और ऑप्शन डी में। हाँ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में एस्टर। सर इसमें so you यूज भी want नहीं me दिया you था। want me to carry out a dehydration between this OH and this COH to यस get a 1 2 3 4 5 member ring। ये 5 member ring बनने से ये जो COO वाला होता है उसके ऊपर में एक ब्रांचिंग और होता, वो ब्रांचिंग भी मिसिंग है।
समझ रहे हैं? सर बट अगर अटैक हम लोग वो लेफ्ट वाला लेफ्ट मोस्ट कार्बन से कराएंगे तो आ जा रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग यू। ये COOH और ये OH है, यही दो हम लोग ले सकते हैं, है ना? अरे हाँ ना बोल। हाँ सर। उसमें भी जो ऑक्सीजन रहेगा जिसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, वो जिस कार्बन से लगा वहां पर कोई मिथाइल का ब्रांचिंग चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। दूसरा बात, 3 डिग्री अल्कोहल है, बहुत यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर्स है। तो कीप इट सिंपल, मैं एल्डोल बना के छोड़ दूंगा ना। एल्डोल इज ठीक है सर। वेरी सिंपल कॉमन सोल्यूशन टू इट। ठीक है सर। What you're saying is also a possibility, but I have a simple option to go with. 60, 60 तो 60 में नाइन वन। में वन होगा। वेरी गुड। कार्बन नाम नाम बताओ, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? वन। सर वंश। कृष्णा। ये तो फर्मेंटेशन है, ये तो फर्मेंटेशन है, ये तो फर्मेंटेशन है जिससे इथेनॉल बनता है। शुगर का फर्मेंटेशन है। जाइमेज विल गिव यू अल्कोहल, और ये अल्कोहल अगर 2 कार्बन का अल्कोहल है, इसमें हम लोग, ये रिएक्शन कौन सा है बोलो बच्चे लोग? NaOI। NaOI इज एज गुड एज OI माइनस। और ये बोला था OH माइनस आयोडीन। ये सब एक ही वे तरीका है लिखने का कि बेसिकली इट्स आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म में क्या होता है? ये जो बनेगा CF3CHO, इसमें आयोडोफॉर्म होगा तो ये कीटोन का मिथाइल चला जाएगा, इट विल गिव यू एन एसिड विद तो 1 सोडियम कार्बन। फॉर्मेट देगा ये। हाँ, सोडियम फॉर्मेट देगा, सोडियम फॉर्मेट देगा, सत्य वचन। 61 बोलिए, 61। 6. 61। What is the common answer? 6, sir. Somebody is saying 6. Anyone with a different answer? Sixty-one. What's the common answer? देखो, सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करके मैं K2Cr2O7 से ये साइक्लोहेक्सानोन बनाता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें ग्रिग्नार्ड जैसे पीएच यहाँ पर आके लग जाएगा। फिर खाना नहीं बोलते हो। और ये हीट होगा तो क्या होगा, ये हीट होगा तो क्या होगा, ये हीट होगा तो क्या होगा, बोलो बच्चे लोग? ये हीट डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा। होगा? डिहाइड्रेशन। एट आंसर है। आंसर क्या आ रहा है फाइनली? अरे बोलो, फाइनली क्या होगा? डिहाइड्रेशन करने के बाद में क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन करने के बाद यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। मेरे को लग रहा था ये सब लोग कर लिया होगा, ये भी विद इन रीच है। अगर टाइम चाहिए तो मैं थोड़ा टाइम दे सकता हूँ। आई कैन गिव यू अ ब्रेक ऑफ 10 minutes like I given the live class if you want a little time to solve more questions. But otherwise I think it's within reach. सिंपल है ये। विद PHMGBr, जस्ट विद PHMGBr हाइड्रोलिसिस होगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे, कितना sp2 कार्बन है बताओ, जल्दी बताओ। 8। 8 8। How many of you got it right? How many of you got it right? कृष्णा। Only Krishna, rest of you? I was hoping more people will get it right. Nandini, Sejal, Ved, वंश, विदित बाबू भी क्लास में हैं, बोलते नहीं हैं। विदित बाबू, हाउ आर यू? बेटा आया था प्रवेश। कन्हैया इज अराउंड।
Are you all happy with 61? Answer 8, 62, 62 वाला भी मैं कभी कभी क्लास में करवाता हूँ। ये नेगेटिव जाकर के दूसरा मॉलिक्यूल में जब लगाओगे, ये नेगेटिव ले जाकर जब दूसरा मॉलिक्यूल में लगाओगे, तो सबसे पहले ऐसा एल्डोल बनेगा। सबसे पहले ऐसा एल्डोल बनेगा। जो अटैक करता है वो जाकर के दूसरा का उस कार्बन पर चिपक जाता है, जो OH बनता है और हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनता है। आई थिंक इट्स प्रीटी विजिबल। और ये जब हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे, ये जब हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड O के साथ में ये पाई बॉन्ड रहेगा। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 2 4। इसका आंसर 4 आएगा। ये भी सिंपल है। 62 का 4 कितना लोग का है बच्चे लोग? वंश वंशिका कृष्णा वंश, सेजल और किसी का नाम मैं सुन नहीं पाया। नंदिनी का नंदिनी 61 नहीं हुआ था तेरे से? sir I made a silly mistake क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा है। sir I made a silly mistake over there चलो, नहीं होना चाहिए यार। 61 जैसा क्वेश्चन सबसे सॉल्व होना चाहिए। अच्छा, 62 भी सब लोग बोल रहे हो, 4 काफी लोग 4 बोल रहे हो। अब देखो, आइसोब्यूटाइलडिहाइड, ये क्वेश्चन में बोला था ना, पहले पूछा है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ में K2CO3 का कंपाउंड दे देता है, A with KCl हीट कंपाउंड बी, विच हाइड्रोलिसिस गिव्स अ स्टेबल कंपाउंड बी। अब मेरे को उसका आंसर याद है। इसका मेरे को आंसर याद क्यों है? क्योंकि ये मैं सॉल्व क्वेश्चन किया था पहले। इसका आंसर मेरे को 63 का C याद है, क्योंकि देखो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे। कहाँ किए थे बताओ, कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला था, देखो। यही क्वेश्चन वापस 47 वाला वापस 63 पूछा है। जहां पर पहले प्रोडक्ट बता दिया था मेरे को, आइसोब्यूटाइलडिहाइड बता था। अब मेरे को ये पहले बता दिया कि आइसोब्यूटाइलडिहाइड है। ठीक है, ये आइसोब्यूटाइलडिहाइड है। उसके ऊपर में मेरे को बोल रहा है कि अब ये सारा रिएक्शन करो। अब मेरे को वो आंसर निकालना है। तो 47 के साथ में 63 को कंपेयर करना, देखना आंसर बी आएगा। सी आएगा, सॉरी। 64 भी सिंपल है। 64 में कुछ नहीं है। प्लस प्लस, माइनस माइनस। कितने लोग 63 कर लिए थे भाई जी? मुझे लग रहा है 64 का सी आएगा, सी कैलकाटा। देखो ध्यान से देखो। सिक्सटी फोर का देखो बच्चे लोग, हाँ ना बोलो। अरे कुछ गड़बड़ है क्या? ए होना चाहिए। yes sir option A है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन में 2 OH, 1 और 3 नंबर पर मिथाइल मिथाइल। हाँ, ए होगा। सॉरी 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 सॉरी। सुनो, 64 के बाद 65 से जो क्वेश्चन है ना, 65 से जो क्वेश्चन है, उसके लिए मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ। हालांकि 65 सिंपल है। 65 में आंसर सी होगा, बिकॉज इसमें तीनों को तुम इन्वॉल्व कर दोगे तो OH 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 बन जाएगा। मैं ना 66 थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है। 66 देख लो, उसके बाद बाकी थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 66 इज अ बैड क्वेश्चन। बाकी 66 टिल द एंड। आई गिव यू अ ब्रेक। विल रिज्यूम इन 5 मिनट्स। हाँ, विल रिज्यूम इन 5 मिनट्स। एक बार अटेम्प्ट कर लो, अगर तुमको थोड़ा टाइम चाहिए तो। लेट देयर बी अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स।
Hello. You all are able to hear me? बच्चे लोग? Will want to Yes. restart? मेरा बेटा आ गया है क्या बीच में क्लास के अंदर में बोर्ड के सामने? So I think we can resume. 66. 66 कोई कर पाया है? मोन MNO यूज हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा एक वियर्ड क्वेश्चन है। याद है मैं बताया था कि यू कैन पास वेपर्स ऑफ एसिड। मान लो इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ऐसे रिएक्ट कराते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर निकालते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर निकालते हैं तो रिंग CHO मिल जाता है। ये एमिनो के साथ में हीट करने से होता है। ये थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, यहाँ बोला नहीं कि फॉर्मल्डिहाइड भी साथ में लेना है। ठीक है बच्चे लोग, हाँ ना बोलो। और बाकी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। केमनो फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये होगा नहीं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको OH तक ले जाएगा और NaBH को रिएक्ट नहीं करेगा। तो एमनो इज ओनली पॉसिबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर केस। 67 quickly. 67 is a simple question. So option A. एओ ऑप्शन ए नेचुरली पहले CH3 CH2 इसको OH COOH CH3 बनाएंगे और उसके बाद वाटर ऐसे निकाल लेंगे और पाई बॉन्ड यहाँ पर है जो पाई बॉन्ड इसके साथ में रेजोनेट करता है। 67 A अगर इज राइट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। 68 is also a weird question. Seems the only possibility because this looks sterically hindered. ये ना मैं पहले क्लास में काफी बार बता देता था, इस बार मैं दोनों बैच में बताना भूल गया हूँ, बट ये एक ऐसा कंपाउंड है जो स्टेरिकली हिंडर्ड होता है तो ये बहुत सारा रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, डोंट गेट सरप्राइज अगर ये साइनोहाइड्रेट के साथ में भी रिजल्ट नहीं, स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। 69 कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन C पैराबेंजोकेटोन, पूरा कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पूरा कॉन्जुगेशन है। अरे डाइकीटोन में कॉन्जुगेशन, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन मिसिंग है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन मिसिंग है। C कैलकाटाइट होगा। इट्स सिंपल क्वेश्चन, ये तो सबको कर लेना चाहिए था। कौन कौन किया है राइट? बोलो तो जल्दी बताओ, नाम बताओ। ये बहुत लोगों को राइट करना है। प्रवेश हाँ प्रवेश, नंदिनी, प्रवेश,
यहाँ पर दिस विल बी द साइट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, यस और नो? यहाँ पर दिस विल बी द साइट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और ये पाई बॉन्ड जब यहाँ पर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 2 and 3, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन ही है। हाउ मेनी यू गॉट 70 का सी राइट? Krishna, Nandini. You want to help Nandini, Krishna, who else? Sejal. You want to help? Yes. Who? What's the third name? The Sejal. Sorry. Please one more time. The Sejal. Sejal, sorry. ये 1 2 3 4 यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे 4 वाला जो होगा वो एक 3 हो गया। अच्छा ये क्या है? 71 का क्या है आंसर? ये एकदम बिल्कुल सिंपल रूटीन क्वेश्चन है। 2-butene, So option 71 is a बिल्कुल, हाँ सी कलकत्ता। हाउ मेनी पीपल सी कलकत्ता राइट? 71 का सी राइट? Krishna, Savansh. Nandini. होगा क्या? जब कीटो मिथाइल ग्रुप में हम लोग मिथाइल को हटा देंगे, ये जब मिथाइल चला जाएगा और इसको COOH कर देंगे तो ये हो गया COOH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है? ये वाला कार्बन है। क्या करते हैं हम लोग हेलोफॉर्म में? याद करो, मैं बताया वो कितना बार बताया, और ये कितना काम का चीज है, वो बार बार काम में आ रहा है। और उसके बाद हम लोग उसको फ्लोराइड में डिकार्बोक्सिलेट कर देंगे, तो जब COH में चला जाएगा तो 1 2 3 4 ब्यूटेन फॉर्म। आई थिंक इट्स प्रीटी अंडरस्टैंडेबल। 71 सी कलकत्ता। बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे। 72 यहाँ पर एक प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये मैं नोट्स में लिखवाया हूँ। और साइनोहाइड्रीन में मेरे को हाइड्रोजन साइड से मेरे को साइनोहाइड्रीन मिलता है। ये गलत है, ये फॉल्स है, अमाइन नहीं मिलता है। आई थिंक यूर ऑल देयर विद मी। 72 बी बॉम्बे। हाउ मेनी पीपल 72 का बी राइट? सेवेंटी टू का बी राइट होना चाहिए था, क्या हो गया? तो नेचुरली इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन करेंगे, रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इट विल गिव यू डायोल काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड अ मॉलिक्यूल containing an OH and CO minus. So what's the right answer here? option 73, C, please go ahead. the option C. बोलता है नॉट फॉर्म, क्या नहीं बनता है इसमें, क्या नहीं बनता है। और कंपाउंड विद बोथ अल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप बनता है, ये एक बनता ही है नेचुरली। ए तो बनता है, ये तो दूसरा वाला ए है, यही तो ए है, ये तो ए है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी यही है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, डायोल ये है, ये नहीं बनता है, सी नहीं बनता है। हाउ मेनी पीपल सी राइट? 73 का सी राइट। सिंपल क्वेश्चन थे यार, ये तो प्रवेश। Nandini. Savansh. Vanshika. Sounds good. 74 NaOCl is as good as NaOH plus chlorine. कौन सा रिएक्शन है बोलो? Alloform. हेलोफॉर्म है, पर यहाँ पर हेलोफॉर्म का लक्षण तो नहीं है ना, ये तो मिथाइल ग्रुप वाला तो कोई कंपाउंड है नहीं ना। ऑप्शन ए है। ओ हाँ, इसके ऊपर में हेलोफॉर्म करके प्रोडक्ट है, वो जो दिया है वो प्रोडक्ट है। तो अगर ये COOH है, ये भी सिंपल ही है, फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर ये COOH है तो मैं बताया हूँ क्या करने का, हम लोग दो COOH है उसमें एक मिथाइल और जोड़ देंगे, यही करेंगे हम लोग, एक मिथाइल जोड़ देंगे, COOH में एक मिथाइल और जोड़ देंगे। ए अगर हम सबका राइट होना चाहिए। 74 ए, हाउ मेनी यू गॉट ए राइट? 74 ए राइट। Nandini. नाम बताने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए, जल्दी बढ़ेंगे। 75 75 75 में किसी के पास राइट आंसर है तो बताओ। ये डाई मिथाइल हो गया कार्बन, ये CH2 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O जो होगा ये सबसे पहले NH2 बन जाएगा। ये मैं रिएक्शन बताया नहीं हूँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
I'll say this at the next opportunity. The Hoffman moment I'm bromide. talking about, yes, Hoffman bromide. The moment I'm talking about amine, this will be such an important reaction. Hoffman bromide would convert, it's for degradation because ये कार्बन कम हो जाता है और RCONH2 बन जाता है NH2. Please look into this reaction. Hoffman bromide में क्या होता है? RCONH2 becomes RNH2. उसके बाद ये NH2 में ये हम लोग कर रहे हैं जैसा होता है 1 डिग्री अमाइन में N2 प्लस बनेगा और फिर अल्कोहल बन जाएगा. N2 प्लस बनेगा और ये 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक का केस है. यहाँ पे get you an alcohol. How many of you got it right? सी कैलकाटा राइट है क्या बच्चों? सी कैलकाटा राइट है क्या? हाँ सर. हॉफमैन ब्रोमाइड ये करता है. हॉफमैन ब्रोमाइड ये करता है. RCONH2 को RNH2 बना देता है. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसका बात करेंगे हम लोग एट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. NaOH ब्रोमीन इज अ स्टेप डाउन प्रोसेस. CONH2 को CH2NH2 कर देगा. मतलब ये एक कार्बन कम कर देगा. ये RCONH2 है तो ये RNH2 हो जाएगा. फिर 1 डिग्री अमाइन जैसे एलिफेटिक बनता है अल्कोहल, वैसे अल्कोहल बना देगा. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. विद इन रीच कितने लोग का 75 राइट हुआ? क्विकली टेल मी योर नेम्स. How many of you got 75 right? And then we'll move to 76. How many of you got 75 right? Come on. Else, you'll want to take a note of it. वरना 75 देख लो अच्छे से. कोई डाउट है तो पूछ लो. COCl पहले बनेगा CONH2. Alcoholic ammonia, naturally ammonia is a stronger nucleophile. Cl minus is a good leaving group. तो COCl की जगह CONH2 हो जाएगा. That will be acyl nucleophilic substitution. उसके बाद हॉफमैन करके अल्कोहल बना देंगे. 76. 2 मोल ही है तो 1 मोल से इसको OH कर दो. 1 मोल से इसको OH करके यहाँ पर एक मिथाइल लगा दो. ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. और दूसरा मोल से C ट्रिपल बॉन्ड N को C डबल बॉन्ड O CH3 कर दो. हीट करोगे तो डिहाइड्रेट हो जाएगा. यही तो राइट लग रहा है मेरे को. ये राइट है क्या? देखो तो. हाउ मेनी got 76 राइट? Nandini. Krishna. वंश. यश. ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहां पे जो नाम है ना, खाली नाम से क्वेश्चन आ गया. देख मिथाइल ऑक्साइड में पढ़ाया था. मिथाइल ऑक्साइड फ्लोरोन, इसलिए मैं बोलता हूँ नाम रहना जरूरी है. 77. ये X तो हो जाएगा तेरा HCl. इसमें कोई डाउट नहीं है. अच्छा HCl दिया हुआ है तो X हो जाएगा तेरा अल्काली. अल्कलाइन मीडियम में होता है. साइनोहाइड्रिन पढ़ाया था ना. HCl तो दिया हुआ है मतलब एक अल्कलाइन मीडियम में NaOH हो जाएगा. और उसके बाद ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल कन्वर्ट दिस टू, जैसा दिख रहा है वैसे ही रखने दे. Cl को CH2NH2 कर दे. कौन सा ऑप्शन राइट है बोल तो? C. टी. ए में कार्बन कम है दोस्त. ए में कार्बन कम है. सी राइट है. सी बोलो. सी. ए में कार्बन कम है. सी राइट है. 77 सी कैलकाटा. हाउ मेनी यू गॉट 77 राइट? Krishna. Nandini. वंश. कृष्णा, वंश, नंदिनी. बाकी लोग भी राइट किया होगा मेरे को लगता है. सेजल हुआ था तो ये Yes, sir. 78. कितना अच्छा क्वेश्चन है ये सब मैं क्लास में करा चुका हूँ. इसीलिए मैं पढ़ाया हूँ कि OR देख करके इसको तुम हेमी एसिटल समझ जाओ. हेमी एसिटल देता है टॉलरेंस टेस्ट. याद है? ये देख के समझ में आ जाएगा. ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ बोलो तो? ये OH और ये CHO के साथ तो ये देगा. ये टोटोमराइज कर जाएगा. देखो अच्छा क्वेश्चन है ये. हर किसी से नहीं होगा पर अच्छा बच्चा कर लेगा. ये टोटोमराइज करके CHO देगा. ये भी देगा. ये टोटोमराइज करेगा तो ये एसीटोन होगा. ये नहीं देगा और ये देगा. तो 1 3 4 देगा. कौन नहीं देगा? 2 नहीं देगा. हाउ मेनी यू गॉट 78 का सी राइट? Vanshika. हाउ मेनी गॉट? Krishna. वंशिका, नंदिनी, कृष्णा,
सेजल, रेस्ट ऑफ यू 79 आंसर बोलो। 3. 3. 3. नेचुरली Three. सेमी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेमी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेमी कार्बोहाइड्रेट होता है NH2 NH NH2। इसमें भी 3 था, फाइनली भी 3 रहेगा, ऐसे हम लोग वाटर निकाल लेते हैं और इसमें 3 नाइट्रोजन ही रहेगा। बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल स्कोरिंग क्वेश्चन है। जो बच्चा सेमी कार्बोन जानता है, सेमी कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन जानता है, उनको गेट फुल मार्क्स फॉर दिस। 80 थोड़ा सा बदमाश वाला क्वेश्चन है। 83 थोड़ा सा एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर मैं एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखवाया था, बोलता है ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट को कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, टॉलरेंस रिएजेंट को कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? मैं लिखवाया था RCHO प्लस 2 AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, याद है? मैं ऐसा एक क्वेश्चन लिखवाया था, बहुत सा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर 2 AgNH2 प्लस में ये Ag+1, ये है Ag0। तो एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यस और नो? फिर हाँ ना नहीं Yes, sir. बोलते हो। एक एल्डिहाइड 2 Ag प्लस के साथ में 2 Ag बना रहा है, तो यहाँ पर आंसर 2 होगा। ये उसी को सॉल्व कर पाएगा जो उसको ये इक्वेशन याद होगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी का सब लिखवा देता हूँ। और नेचुरली ये जब एनसीईआरटी का इक्वेशन में लिखवाया था, ये जब मैं पीपीटी बनाया था, जो मैं क्लास में तुम लोग करवा रहा था, ये पूरा कोरोना का टाइम का है। तो दिस वाज बिफोर 2021। ये जो क्वेश्चन आया ये बाद में आया है। मैं इसका जो पीपीटी बना करके मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का जो मैं वीडियो शेयर किया हूँ, ये मैं 2021 के पहले से शेयर किया हूँ। एंड इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग, दे डन समथिंग एंड आई हैव टोल्ड यू कि एनसीईआरटी का है, इसको याद रखो। एक और क्वेश्चन हम लोग पहले वाले सेट में भी देखे थे जहाँ पर उसको जरूरत पड़ा था, वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत था। पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर एक एल्डिहाइड 2 Ag प्लस को Ag बना रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड आर 2। मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुम लोग का नोट्स में होना चाहिए। ये मेसिटिल ऑक्साइड, ये सब जो बताता जो हूँ, ये ट्रिक में बताता हूँ, हालांकि ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, पर ऐसे मैं जो बताता हूँ फॉर जनरल कंजम्पशन, कि ऐसे 2 मोल एसीटोन में से ऐसे पानी निकाल करके तुम मेसिटिल ऑक्साइड बना सकते हो, याद है ना? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है 5. टोटल? अरे 6 तो मेरे को ऐसे ही दिख रहा है, कार्बन कार्बन। अच्छा वो कार्बन ऑक्सीजन हो गया, वो वाला, वो कार्बन ऑक्सीजन हो गया, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, कौन बोला 5? Sejal. 5 is the right answer. Who else got it right? 81 5. Who else got it right? Nandini. Sejal, Nandini and एब्सोल्युटली एनसीईआरटी पे। ये मैं कितना बार क्लास में बताया हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे दोनों OH बनेगा, एसिड डालोगे ये OH बनेगा, ये OH बनेगा, वो एसिड बनेगा। पर जब डाइबल H डालोगे तभी ऐसा होगा कि ये वाला बनेगा OH और ये वाला बनेगा CHO। क्लियर है क्या बच्चे लोग? हाँ ना बोलो। हाँ सर. हाउ मेनी यू गॉट 82 का C राइट? 82 का C कितने लोग का राइट हुआ? वंश कृष्णा। वंश कृष्णा, वंश कृष्णा, नंदिनी, सेजल, Yes, sir. वंशिका। Yes. अब ये जो, हाँ ठीक है, गुड गुड टू नो। मेरे को लग रहा है ये सब हो जाना चाहिए, क्लास के सारे बच्चों को हो जाना चाहिए। और भी बहुत बच्चे क्लास में, इतना जो लोग अटेंड कर रहे हैं, नाम नहीं बताते मेरे को, पता नहीं क्यों। आई एम हैप्पी विद दोस पीपल हु आर रिस्पॉन्डिंग इन द क्लास। दैट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव फॉर मी टू कैरी ऑन। हाइड्रोक्साइड अमाइन के साथ में रिएक्ट करता है बट टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, मतलब ये एक कीटोन है। और अगर ये कीटोन है तो ये 4 कार्बन का नॉन टर्मिनल हैलाइड है, और नॉन टर्मिनल डाइहैलाइड यही हो सकता है। ये सब बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए। हम लिखी गॉट 83 का डी राइट, सबका राइट होना चाहिए। हम लिखी गॉट 83 का डी राइट। कृष्णा। Vanshika. Sejal.
84 is the simplest question of the set. 24 DNP can be used to identify. Come on. 85 थोड़ा सा खराब क्वेश्चन है. It's really sad that we are ending on a bad question, something which I have failed to tell you in the real class, but फिर भी एक बार एग्जाम में आ गया तो याद रखना. मोलिब्डेनम ऑक्साइड एक प्रोसेस है जिससे जनरली ना मीथेन को फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं. यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से सीधा फॉर्मल्डिहाइड बनाने का एक मेथड बोला है, MO2O3. उतना पॉपुलर नहीं है, बट एक बार जान के रखो. I repeat, it's not that great. It's sad that we are ending on a bad question today. It's very unusual, for a exam like JEE to ask a reagent like this. But because it has come in the exam, I don't bypass anything. ये भी एक बार जान के रखो. MO2O3 जनरली ना बहुत पॉपुलर है मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए. तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाया. 3 कार्बन का एल्केन से प्रोपानॉल बनाया है. I'll have to see if this is really a feasible step or not. But the option from these 4 options, which I can tell you is the right answer given by NTA as well, is option C. On this note, we'll want to end the class today. So, first thing, it was an extended online session. और ऐसे मेरे को क्या है ना कि I'll take more opportunities of solving questions online. I think this is some real good practice which all of us will want to have. And solving 40 plus questions in around an hour or so is actually, pretty good as well. So stay happy, stay healthy. God bless you all. अगर possible हुआ तो कल मैं इसके बाद वाला सेट भी करा दूंगा और 30-40 क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे हम लोग और एडिट करूंगा. सारा क्वेश्चन देख लें, अच्छा क्वेश्चन भी देख लें, खराब क्वेश्चन भी देख लें. Few people at the next opportunity. If you people don't have a class tomorrow, I can take another online class. And even if you have a class tomorrow, I'll take an online class if possible at the regular, 10 PM slot. मिलते हैं फिर. इसके पहले का सेट का भी कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, वो भी मैं अगला टाइम करवा दूंगा. अभी तीसरा सेट जो है वो मैं एक बार वापस ग्रुप में डाल देता हूँ. प्रिंट आउट निकाल के अटेम्प्ट कर लो and move on in life. Take care. Bye bye. Good night. God bless you all.